नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत की आवाज, रिया के राज। जी हां, एक ऐसा ऑडियो क्लिप जिसमें बहुत सारे ऐसे सवाल जो देश के मन में, जो सुशांत के फैंस के मन में इस वक्त चल रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब खुद आज सुशांत सिंह राजपूत का एक ऑडियो देने जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत जिनकी मौत मिस्ट्री बन चुकी है और कटघरे में खड़ी है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। आज तक करने जा रहा है बड़ा खुलासा। सुशांत की आवाज आज गवाही देगी। आखिर सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या थी सुशांत की प्लानिंग, जिसमें रिया चक्रवर्ती और उनके पिता की मौजूदगी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। सुनिए। At this point in time, I just wanted a request, a favor to us. And how should we just save all the money, do it in a way that I talked can... about a worst case scenario yesterday, and that was a worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so Yeah. that's probably the worst case. So the worst case I can ever see. which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up and to take care of the individual and ensure that all financial decisions are with a pool of people in terms of a trustees who actually decide. And they have a parameter as you will guide us in that. So how do we go about this? As I said, that's a worst case scenario, right? Don't think we're there yet. I think He had this insistence yesterday. trust. So I'll tell you. So I've definitely wanted in a way that if, for example, tomorrow I'm not there or Shruti's not there or Miranda's not there and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly the first thing I told them is to start making everything in FDs. Right. Which is why they must have called you frantically. Right, As he yeah, just yeah. put all his money in FDs. So in the card there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that he has, so that we can get some interest from it, so he doesn't start eating into his savings in the best case possible that you all can come up with. Right. And to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen, like to break an FD. From city to To a smaller, you have Kavli, that place. either their place or Something else that- something like that. Or like there's a thought that Goa maybe, but Dad suggested that be in Patna for some time, see that, then first see Goa. Give it like 1 or 2 months before we finally decide that. But overall, he on the wants to one hand, feel if you're having this safeguarded. conversation- He's thinking of the future. Like he's worried about the future, and he wants that kind of safeguard that I'm saying let's treat it as a something like a retirement thing. I understand. So how will I do it? I just want help. Yeah. Correct. So this is the first goal is this money. Like whatever money he has, invested in a way that he gets some returns. So that I know that this is the amount. This of is the money. amount he's that you getting can every earn. month, then he can plan accordingly to give up this house. I don't mind going to a green, secluded place like Right. Goa or Right. Pavna. stay. You were quite happy whenever you've gone to Pavna, I Pavna. remember. So Yeah. we're there for days till I was like, what is going on? So that's just. Whatever is going to give you peace of mind. So the attempt is now that in 1 or 2 days we go to Pavna and set him up there and see how he feels in a couple of days. Okay. Once he's certain after a month, I'm peaceful here. I want to be here mostly. Decide if you should. Then pick we this can up. start talking about getting rid of this house and speaking to the owner. Yeah, we can have the plan of. I think. I hardly go out of my room. Right. Yeah. Right. No, that I'm That's sure a- we'll be able to work something. Fair thing. But yeah, it's a long life. So if working again, it has to be a goal post that you have to achieve. That's what Yeah, I'm saying. yeah. So I'll have my intellectual curiosity to take care Right. of that, but not in terms of any economic commitment. Right. Because this kind of frame of mind, like one day I feel something and the second day I feel something Right. else about work. So I cannot be wasting others' time at all. Right. Yeah? So like that, if we could plan once, then We'll figure something. huh? We'll figure something. Yeah. We'll tell you. Just give us 2 days. Okay. We are the best people. Saviors. Saviors. Have we taken any signing amounts from any We've brands? taken signing amounts. From So- Titan we've taken from renewal Sony ke liye Lex, na? yes. That we know. So he's feeling like he can't shoot those. Titan or Ads. concert? But Titan Sony का Lex कुछ उस deliverable दिन जो नहीं है मिलके ना? गए थे उनसे ले लिया Titan है. has just taken an extension to use the same image, so I don't think we have any commitment to shoot anything. No, new. no, it's an We extension give for 1 day social shoot. media. Oh, One there day is shoot. there's 1 day. There's 1 day Correct, shoot. correct. So they've been asking us for a date post 24 Jan.
we've been postponing it in terms of send us creatives first, then we'll give you dates. But you don't think even Monday will be able to shoot? I was telling him, telling him March make we hay can push. while this month year is there. Whatever few endorsements, at least do it. Add more to the But he kitty. should be able to do it. But he should be able to do it. Exactly. If he was No, able it's to his do it, call he- ultimately. Good days, you can do it. नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है. Yeah, one. Yeah, so See, right now that he steps only will had his take- money open. Yeah. Few FDs have been made now, and some are in mutual funds, and some are still open. It was badly managed To be earlier. honest, We just have to be FDs are managed also well. not the highest I mean, I know, today, but for I'm saying example, I would not for put someone money like in me, as many who FDs. when I know that it's just there, all I can suggest is Yes, make FDs it are here not and Rate of immediately interest is so FD. low that we only put a She was certain trying to amount make and it then we safe. did not. Right. Rather than At it being least what- open in a card, which I don't know who the hell will have that card at any given point. So we had I plans thought to this shift is- him from But even Kotak on Privy to cards- Kotak Wealth. All where that, They will shift. yeah. They will manage the asset like an AMC Yeah. does, or a private or an ASK Chai advisor. coffee now. I've told them. Charles coming. Kotak also will make money on Yes, will yes. take commission and all. Everybody that, does. You know, it's just a question of who will make lesser commission. The people who charge a lakh a year and they're happy. Somebody who But I charges wouldn't 0.05. also want to give everything in one person's hands, right? You just talk and diversify it as much as you can. Sure. I mean, I don't know if there's enough to even just buy a small, like, to invest in a small property. Just in case the cards come in someone else's hands, right? Really Keep an swipe limit. open-ended Yeah. limit on cards. No, anyway, I'm saying the card should never have more than 10 lakh rupees. No, what she's talking about is different. Even in a Swipe. single Daily swipe swipe, limit, yeah. There is a limit. So there is a per limit. swipe. Yeah, so we have two cards here. One is a small card, one is the larger one. Larger one is his that has a 5 lakh limit, and the smaller one has a 50 grand limit. Just ensure that I stop spending money that I So spend. we have this list of expenses that you incur every month, right? Right from this house to employees to cars to everything. And currently, status of this corpus, assuming there's no further income, it's difficult or impossible rather to even sustain that kind of expenditure. So you need to cut down whichever can be cut down immediately and start saving money. So money So this house, probably, but since it's a new lease license and he has a deposit, maybe we'll have to speak to the. We can speak and get out of it. We can If speak the and get out decision of is it. to get out of it, we get out of it. Maybe we. But I was just saying, for that call to happen, for the decision to happen, maybe in a month we can start talking to the owner. Yeah, and I'm thinking in good faith we can even start helping him find another Correct. tenant because Yeah. it's Yeah. happened to me also. I've been in a situation where you wanted to get out. Idea about So we can park this for Wednesday or Thursday. Cool. If it's 14th would be a off kind of thing. Yeah. Sankaran thing. Wednesday. Wednesday. For my birthday, for sure. 21st. Wednesday, what time would it be? I am okay on my Wednesday is open, so If you want me around, Fold you then as a maybe gift. after 7. ठीक है. evening. Yeah. Yeah. How about Security is a that? grave Okay, keep it Yeah. last meeting of the day. That should be all right. Wednesday around 7ish. So my birthday No, gift no, will be a Wednesday great is a portfolio. Oh, that sorry, you I don't can- have your birthday. I'm 21st. hosting one of my clients is hosting a mixer, so I'm not Gift there. is So the maybe Thursday. portfolio that Agar No, this can be Wednesday devised. दोपहर I'll कुछ put. होता है, I'll call the ठीक है. investor guy. In fact, now once I leave from here. साथ में डिस्कस करके आ जाए. I'll tell him. If we have, say, 10 rupees that has to go in this trust, and suppose you want to make an FD or a mutual fund of it, that still the trustees can. The trustees will decide what is trustees best. will yeah. decide. Will decide what is best, to Best, be yeah, done. which with which it. has a better return rate and which less risky. And you So can see, define all that. It can be a whoever you- simple or a huge document as critical as complicated. But as see, this is the Say- worst case scenario. Yeah. I personally feel I that also at this- personally feel like we can come to this conclusion after a month. Yeah. That's what I in fact told her, that give it 5-6 months here initially with Pavna. Because you have the place. And we're paying rent and it's And not then that you expensive go to Goa and see compared if you to what want we have for a here. month. Yeah. Sir was saying that it's too expensive. Which one? The Pavna place, for Pavna standards, it may be expensive, Yeah, for but Pavna for the standard, it's property, expensive. and It's he fine. seems to be enjoying it. And Yeah. it's So I done don't know the well. size of the property. We checked with some person who lives Yeah. there and owns the property. The area rate is 50-60 lakhs an acre. Yeah. So I don't know how big this But property it's is. done, it's made well. There's like a river also close by, right? You have lake. access to the The lake. There's a Pavna Dam. You can give him an idea of how much money he can get every month from Well, returns. ballpark, I give you a number of 5 lakhs a month. You'll be able to get that. Yeah, that's a ballpark number. That's beyond that would be difficult. On an investment of? I mean, what will be the return? Well, we are taking just not even 9 to 12% per annum, Okay. and after taxes, you'll be left with 5 lakhs a month. So We could about have a higher rate of return when the risk increases. Yeah. you are the boss. No, because you can, if that policy is mature, then we'll get that money. Oh no.
There's no insurance policy. We got him a life insurance that is maturing. We haven't seen That's that all. in the There is books. no Yeah, life nothing in the insurance. books that we have seen. He has health insurance. I can let go of these fancy cars that I've bought. Yeah, he can sell the Maserati. You will lose money. Yeah, We it's don't too need to too make quick. such extreme decisions. Just relax. If there is enough of a corpus, we'll make it work. We'll save a few lakhs, put our right? heads together and diversify it as much and find you money that you need every month. The What car is will a not good even income? fetch you What is a 50. good number for you? Is it 8 to 10 lakhs? Is it 7 lakhs? What does it tell us? We'll work backwards. But don't start disposing of assets. You still have a rainy day to see. Yeah, and I'm still telling him 1-2 months later we can get to the, if you're like very certain. Like, And take my advice. You're not at the stage that you start disposing of assets. I will tell you, I am, as much as I like you, I will tell you if it's a tooth that is going to pinch. You don't need to do it right now. To stop यार मुझे एक black coffee देते. spending as soon as possible. Give me the All cards. the things. Huh? Give me the cards. I'll keep them with me if you want spend. There are no for any other expenses but the house functioning and the staff costs. Right. Which I told him for 1 or 2 months, let it be as it is till you guys come up with a plan and till he's certain that this is not a phase but this is only how he feels now and it's not functional at all. Yeah. We'll give that 1-2 months. And then we can start disposing of assets and reducing staff. So that's why I told him give it 1 or 2 months more. पूरे की पूरे 36 मिनट का ये ऑडियो क्लिप है जिसमें ये साफ साफ दिखाई देता है कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह की हर एक लाइन में अपनी राय वो जरूर ऐड करती हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर आज तक से उन्होंने जो बात कही कि दरअसल अपने सारे निर्णय सुशांत सिंह राजपूत खुद लेता था, लेकिन ये ऑडियो क्लिप साफ साफ दर्शाता है कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती हर एक आर्थिक सलाह उनको दे रही हैं और वही फ्यूचर प्लानिंग कर रही है उनके पैसों को लेकर। इसके साथ ही अपने फ्यूचर को लेकर वो कौन कौन सी बातें थी जिससे डरे हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, इस ऑडियो क्लिप से वो भी जाहिर होता है। इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। टीवी स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं अभिनेत्री अर्शी खान हमारे साथ मौजूद है, साबिर अहमद जो कि फॉर्मल पर्सनल असिस्टेंट है SSR के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजना जॉन फैशन डिजाइनर, आपका भी स्वागत है, हमारे साथ मौजूद है। डायरेक्टर आकाश दीप साबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। महेश ठाकुर एक्टर जिन्होंने रिया चक्रवर्ती के साथ जलेबी फिल्म में काम किया है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महिमा बख्शी आप देख रहे हैं अभिनेत्री, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास गुप्ता सीनियर लॉयर और प्रतीक सोम वरिष्ठ वकील भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले साबिर अहमद आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि आपने एक लंबा वक्त, चलिए साबिर के पास हम चलेंगे, वो हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं, कोई तकनीकी खामी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वकीलों से शुरुआत कर लेती हूं। विकास गुप्ता जी, ये जो 36 मिनट का पूरा ऑडियो क्लिप जिसके महत्वपूर्ण हिस्से हमने देश के सामने रखे हैं, क्या समझ में आता है इससे आपको? क्योंकि यहां पर रिया चक्रवर्ती की दखल अंदाजी कितनी ज्यादा थी सुशांत सिंह राजपूत के पैसों के लेन देन के मामले में साफ साफ इस ऑडियो क्लिप से नजर आता है। विकास गुप्ता। चित्रा जी, अगर इस ऑडियो को सुना जाए तो मुझे लगता है कि एक बात तो प्रत्यक्ष है कि रिया के मन में सिर्फ सुशांत के हित के अलावा और कुछ भी इससे दर्शाया नहीं जा रहा। अगर देखिए, अगर आप भी अगर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें और अपने किसी खास मित्र से सलाह लें और वो अगर आपको कहे कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दीजिए या FD में डाल दीजिए, मुझे बताइए कि वो कहाँ कंट्रोल कर रहा है। अगर रिया ये कहती कि आप FD मेरे नाम पे कराइए, म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट मेरे नाम पे खोलिए और ये सारी जो पैसे हैं ये मेरे नाम पे रखिए, नहीं, तो दरअसल मुझे समझ सवाल में ये भी है, देखिए आज तक ने जब ये सवाल उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि मेरी दखलंदाजी उनके पैसों के लेन देन के मामले में नहीं होती थी, और यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता या उनकी 4 बहनों किसी की मौजूदगी नहीं है, या तो उनको सलाह देने वाले लोग मौजूद हैं या फिर रिया चक्रवर्ती उनके फादर। बड़ी तो आपने स्वाभाविक इंटरव्यू बात है में कुछ और बातें कही और इस ऑडियो क्लिप में कुछ और बात है। नहीं चित्रा जी, उनका जो इंटरव्यू मैंने कई बार देखा है 3 चैनल्स पे, और उन्होंने कहा कि मैं कोई कंट्रोल नहीं करती थी उनके ऊपर, सिर्फ मैरिजुआना की अपनी डोज को रिड्यूस करो, सिर्फ इस बात को लेकर के। मुझे आप बताइए, अगर आप किसी घर में एक फ्लैट में रह रहे हैं, कोई ये बहुत बड़ा एस्टेट या महल तो था नहीं, अगर फ्लैट में कोई फाइनेंशियल प्लानर्स अगर आएंगे तो जो भी फ्लैट में मौजूद है अगर वो वहां उसकी उपस्थिति है और वो सिर्फ इतना ही कह रही हैं कि FD आप, और इससे बड़ी बात भी कि कोई भी FD आपके सिग्नेचर के बिना
तोड़ी नहीं जा सकती, उसका पैसा कोई और नहीं निकाल अर्शी खान, सकता। क्या इस मुझे आप ऑडियो बताइए क्लिप में इससे ज्यादा आपको और रिया क्या हित की बात चक्रवर्ती की होगी? मासूमियत नजर आती है, या आपको लग रहा है कि नहीं, पूरी तरह से जो परिवार आरोप लगा रहा है कि दरअसल पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती ने अपने वश में करके रखा हुआ था और उनके हर एक फैसले में रिया चक्रवर्ती बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, इवन उनको मोल्ड भी कर देती थी। अर्शी खान, क्या समझ में आया इस ऑडियो क्लिप के जरिए आपको? देखिए, मैं अगर ये देखा जाए कि फाइनेंशियल कुछ अगर वो उनसे सलाह ले रहे हैं तो उसके लिए तो मैं उनको बिल्कुल भी गलत नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि अगर कोई अच्छा रिलेशन होता है, दोस्त बनते हैं, तो सलाह लेना बनता है। लेकिन हाँ, अगर उनके पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया है, रिया जरूर उनके ऊपर सवाल उठेंगे और मैं तो हमेशा से उन पर सवाल उठा रही हूँ, लेकिन जब भी मैं कुछ बात बोलती हूँ तो कहा जाता है कि किसी लड़की के चरित्र पे ये बात नहीं करना चाहिए। जब उनकी फैमिली, जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली उन पर आरोप लगा रही है, चीजें बोल रही है, तो फिर हम भी देखकर वही बात कह रहे हैं कि उन्होंने वो चीजें गलत की है। तो मेरे हिसाब से उनके चरित्र पे इस वक्त बहुत अलग अलग तरीके के आरोप लगना लाजमी है, और मेरे हिसाब से वो अगर फाइनेंशियल चीजों में दखल अंदाजी करती थी तो शायद उनका पैसा भी उन्होंने कहीं ना कहीं हड़प के रखा होगा। आपको लग रहा है कि पैसा रिया चक्रवर्ती ने हड़प को रखा होगा? संजना जॉन, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? डेफिनेटली, जितना हम सुन रहे हैं, ऑब्वियसली ये काफी इनके फाइनेंशियल चीजों में उन्हीं का सबसे ज्यादा, सुशांत सिंह का ज्यादा बात ही नहीं सुन रहे, सबसे ज्यादा रिया का ही बातचीत हो रहे हैं। और बाकी इंटरव्यूज में, जैसे पैनलिस्ट बता रहे थे, बाकी इंटरव्यूज में वो क्लियरली बोलते कि उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ ये चीज भी गलत है। अगर उनको पता था कि इनका तबीयत खराब है और उनको जो भी चीज पे आप ड्रग्स हो, मेडिकेशन हो, आपको कुछ उनको दे रहे हैं, वो उनको खुद पता, क्योंकि वो खुद दे रही है, और देते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता उनके परिवार वालों को ये समझाना कि इसको ये प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज, इनकी फाइनेंशियल चीजों में कम से कम इसकी फैमिली के किसी को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरत है। इन सब को हटाते हुए, इनको किसी के कांटेक्ट में ना लाते हुए, सारा चीज अपने कंट्रोल में रखते हुए देख रहे हैं। एंड ये है सबसे गलत बात। आफ्टर नोइंग कि इनका तबीयत खराब है, वो पूरा फाइनेंशियल चीजों का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में और देख वो रहे भी हैं। तब जब आपका बहुत पुराना 10 सालों का रिश्ता नहीं है, 2019 में आपका रिश्ता शुरू हुआ हो और आप कुछ ही महीनों के बाद इस तरह से उनके हर एक फाइनेंशियल प्लानिंग में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और बताएं कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। यानी कि इन बातों को तो दम मिलता है। इसी सवाल के साथ आकाशदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगी। परिवार ने जो कहा है कि फाइनेंशियल उनकी जिस तरह के भी डिसीजन होते थे उसमें रिया चक्रवर्ती अपना दिमाग लगाती थी, और कम से कम ये ऑडियो टेप जो सामने है इसमें ये चीज जाहिर हो रही है। इसमें मैं ये कहूंगा कि जितना अभी मैंने सुना उसमें उसने कोई ऐसी गलत बात की नहीं है, और मैं अपने पिछले स्पीकर से भी सहमत नहीं हूँ, नॉट द गर्ल, द जेंटलमैन लॉयर हु स्पोक, कि अगर सुशांत के घर पे इस तरह की मीटिंग हो रही है तो घर में जो मौजूद होगा बस वही फीलिंग आ रही है। जी नहीं, वो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रही हैं और डिसीजंस ले रही हैं। अब आइए डिसीजंस पर। अगर सुशांत अलाउ करता है अपनी लिव इन गर्लफ्रेंड को ये सब चीजों में दखल देने, टोकता नहीं है, रोकता नहीं है उसे, तो आप और हम कैसे इसको गलत कह सकते हैं? हर घर में इक्वेशंस अलग होते हैं। कहीं आदमी बीवी को इंटरफेयर करने नहीं देता, कहीं बीवी सारे डिसीजंस लेती है। आज के दौर में लिव इन गर्लफ्रेंड एक बीवी की तरह होती है। सुशांत अपने दुनिया में मशरूफ होता था, वो एक अलग टाइप का इंसान था, वो स्पेस जैसा आपने कहा, और एक बड़ा इवॉल्व आदमी था, वो अपने लेवल पे सोचता था। अगर ये सब बातों में रिया साथ हो रही है तो उसे टोकना चाहिए था ना। आप और मैं अगर इस पर टिप्पणी देते हैं तो इसमें थोड़ी सी एक ये अड़चन आती है कि अगर सुशांत को इसमें कोई एतराज था, अगर तो एक शख्स अपनी बीमारी का जिक्र कर रहा है, अगर आप उसको कुछ ऐसी दवाइयां दे रहे हो जिसके बारे में परिवार को जानकारी नहीं है, अगर मैं तो परिवार के आरोप के आधार पर आपसे सवाल कर रही हूँ, और आपका इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, पिता को, बहनों को कोई खबर नहीं है, आपकी एंट्री कुछ महीने पहले ही होती है और उसके बाद आपका रोल इतना ज्यादा हो जाता है कि पैसे को कहां कितने 5 लाख किस एफडी में, 50,000 किस एफडी में और कहां खर्च किए जाए, सारी चीजें आप तैयार करते हो। परिवार का शक इसी वजह से और ज्यादा मजबूत हो जाता है। मैं लौटूंगी आकाशदीप आपके पास जल्दी से।
फिर दोबारा से हमें ऑडियो क्लिप सुनानी है, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें। नहीं, मेरा ये कहना है कि जहां तक रही दवाइयों की बात, वो भी एक बीवी की तरह वो दे रही है। और कोई ऐसा आप जो जैसा कह रहे हैं कि कोई सुशांत कोई अब हॉस्पिटल रूम में नहीं बैठा हुआ था, लेटा हुआ नहीं था, उसके जैसे अब जो सुनने में आया है, जो एक्चुअली तो प्रॉब्लम यही है कि ये सब रिया नहीं बताया कि उसके कुछ अच्छे दिन कुछ खराब दिन होते थे, कभी वो एकदम चेयरफुल होता था। मैं खुद अपने काम के दौरान उसको मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में मिला, विक्रम मल्होत्रा जी के ऑफिस में मिला, तो वो बड़ा नॉर्मल आया हुआ था फिल्म डिस्कस करने, स्क्रिप्ट डिस्कस करने। अब होंगे कुछ खराब दिन भी, जिस तरह वो कहती है, अगर हम सच माने तो ऐसा तो नहीं था कि वो एकदम ही इनकेपेबल था कोई भी डिसीजन लेने का या चल फिरने का। तो अगर वो दवाइयां दे रही है और डिप्रेशन का, एक तो डिप्रेशन की थ्योरी जो है ना, वो पता नहीं इतना रायता फैला है, सच है नहीं है। हालांकि बहुत सारे व्हाट्सएप चैट हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप चैट हैं जो अपने आप में बहुत गंभीर सवाल यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के ऊपर खड़े कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात महत्वपूर्ण है, आपकी बात महत्वपूर्ण है। देखिए, ये हमारी एक बहुत बड़ा चैनल होने के नाते जिम्मेदारी भी है कि दोनों पक्षों की बात हम देश के सामने रखें। यही कोशिश हमारी लगातार जारी है। लेकिन एक बार इसके पहले अपने बाकी में महेश ठाकुर जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आपने फिल्म जलेबी में रिया के साथ काम किया है। रिया चक्रवर्ती को हम समझने की कोशिश करेंगे आपके जरिए, लेकिन उसकी पहले एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि किस तरह से अपने फ्यूचर को लेकर डरे हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, और कैसे इसी साल जनवरी में उनकी ओर से बकायदा फाइनेंशियल प्लानिंग की जा रही थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती की पूरी दखलंदाजी थी। सुनिए। At this point in time, I just wanted a request, as a favor to us. And how should we just close save all the money, do it in a way that I talked can... about a worst case scenario yesterday, and that was a worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so Yeah. that's probably the worst case. So the worst case I can ever see. Which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up and to take care of the individual and ensure that all financial decisions are with a pool of people in terms of a trustees who actually decide. And they have a parameter as you will guide us in that. So how do we go about this? As I said, that's a worst case scenario, right? I don't think we're there yet. I think He had this insistence yesterday. trust me. So I'll tell you. So I've definitely wanted in a way that if, for example, tomorrow I am not there, or Shruti is not there, or Miranda is not there, and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly, the first thing I told them is to start making everything in FDs. Right. Which is why they must have called you frantically. Right. They just put all his money in FDs. So in the card, there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that he has, so that we can get some interest from it, so he doesn't start eating into his savings. In the best case possible that you all can come up with. Right. And to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen, like to break an FD. But that तो anyway. बहुत सारे सवाल जो इस ऑडियो क्लिप से लगातार खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत इसमें कहते हैं, मैं शहर से निकलना चाहता हूं। वो मुंबई क्यों छोड़ना चाहते हैं, बड़ा सवाल है। मैं खुद को सुरक्षित करना चाहता हूं। रिटायरमेंट जैसी चीजों के लिए कैसे होगा, इसमें आप मेरी मदद कीजिए। मैं मुश्किल से ही अपने कमरे के बाहर जाता हूं। सुशांत सिंह की इस तरह से आवाज आती है उसमें, और एक अन्य आवाज है जो बताता है कि ये लंबी जिंदगी है इस तरह का। फिर सुशांत कहते हैं, ये मेरी बौद्धिक जिज्ञासा है, अपने आप का ख्याल रखने के लिए, वित्तीय तौर पर नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग इस हालत में नहीं। एक दिन मैं कुछ महसूस करता हूं, दूसरे दिन कुछ और महसूस करता हूं। और आपको बताते चले, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठाए हैं कि दरअसल उनकी ओर से कुछ ऐसे मेडिसिन दिए जा रहे थे जिसकी वजह से सुशांत की तबीयत लगातार बिगड़ती हुई चली गई। और इसी सवाल के साथ अब मैं सीधे साबिर अहमद आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बहुत लंबा वक्त आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ गुजारा है। ये जो ऑडियो क्लिप आज तक पर इस वक्त तमाम देशवासी देख रहे हैं, क्या समझ में आता है? क्या सुशांत सिंह वास्तव में मानसिक रूप से किसी बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे थे, और जिसके लिए उन्होंने रिया चक्रवर्ती, रिया के पिता और अपने बाकी के जो सहयोगी थे उनकी मदद लेनी चाहिए? और सवाल यह भी है कि इसमें खुद उनके परिवार के किसी लोगों की मौजूदगी नहीं दिखती, वो भी तब जब इतनी बड़ी प्लानिंग को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। साबिर, जो मानसिक की बीमारी बोल रहे, क्योंकि मैं उनके साथ जितने टाइम बिताया, जितने दिन बिताया उनके साथ, पर ऐसे कभी मुझे लगा नहीं उनको मानसिक कोई बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे कोई दिक्कत है, उस टाइम मैं कभी देखा नहीं। क्योंकि मुझे आते हुए 1-1.5 साल हो गए लगभग, तो उसके अंदर क्या हुआ मुझे पता नहीं। लेकिन जब भी मैं था उनके साथ, कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मानसिक दौर नहीं थी उनकी, कोई
प्रॉब्लम है, कोई इशू है, उस टाइम सब कुछ सही चल रहा था, सब अच्छे थे। और उस टाइम ये जनवरी 2020 की बातचीत का क्लिप है ऑडियो का। उस समय आप नहीं थे उनके साथ? उस समय मैं नहीं था उनके साथ। और उसके पहले आप बता रहे हैं कि इस तरह की मानसिक परेशानी या अपने भविष्य को लेकर कभी आपने सुशांत को डरा हुआ महसूस नहीं किया? कभी नहीं किया, वो कभी डरा हुआ नहीं था। उस टाइम मैं जब भी था 2019 लास्ट तक था मैं उनके साथ। कभी ऐसे कोई परेशानी, उनको कोई दिक्कतें नहीं थी कि उनको कोई परेशानी थी, कोई मानसिक बीमारी थी उनको, या कोई डर था उनको। क्या समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ कि सुशांत में इतना बड़ा परिवर्तन कुछ ही महीनों के भीतर आ गया? देखिए, ये अभी यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये 1-1.5 साल से क्या हो गई कि उनको इतना चेंज आया, वो कि इतना चेंजिंग आ गई उनकी लाइफ में। क्या क्या इशू हुआ उनके लाइफ में वो तो एक्चुअल में नहीं पता, क्योंकि उसके बाद मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया उनसे। ठीक है, लेकिन ये मुझे ये अजीब सा लग रहा है कि ये 1 साल में इतना बदलाव कैसे आ गया, कि इतना प्रॉब्लम क्या आ गई उनकी जिंदगी में कि इतना यही वो महत्वपूर्ण सवाल है जो लगातार सुशांत के परिवार की ओर से भी पूछे जा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की जब से सुशांत के जिंदगी में एंट्री होती है तब से ही उनके भीतर लगातार बदलाव होता चला जाता है। वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। रिया चक्रवर्ती तमाम ऐसी दवाइयां देती हैं परिवार को जिसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, और परिवार से अलग थलग करने में भी रिया चक्रवर्ती की बहुत बड़ी भूमिका रही है। परिवार का ये भी आरोप है, और जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें खुदकुशी के लिए उकसाने का। महेश जी, अब मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपने जलेबी फिल्म में काम किया है रिया चक्रवर्ती के साथ। इस ऑडियो क्लिप पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। और रिया चक्रवर्ती चूंकि हमारे साथ इंटरव्यू में कुछ और बातें कहती हैं, वो कहते हैं कि सुशांत अपने हिसाब से जीना चाहता था, अपने खुद की जिंदगी को लेकर वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन यहां पर तो उनकी दखलंदाजी साफ साफ कितनी ज्यादा थी ये जाहिर होता है। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आई बिलीव इन द हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह। और सेकेंडली, पहली बार मैं सुशांत जी के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले आई लाइक टू ऑफर माय कंडोलेंसेस टू द फैमिली। May his soul rest in peace. जहाँ तक रिया का सवाल है, yes, I worked with her in जलेबी महेश भट्ट के साथ, लेकिन मेरा काम बहुत ही it was a very limited role, so I just spent about a day and a half with them. और उससे it was a completely professional atmosphere. जो भी हमने किया था, रिहर्सल किया था एक दिन पहले, उसके बाद एक दिन शूट था, and ऐसा कुछ मुझे मतलब I didn't get enough time to interact with her so that I could pass a comment. लेकिन जो कुछ मैंने ऑडियो में सुना है और जो कुछ दर्शाया गया है आज तक चैनल से, देयर आर लॉट ऑफ लैप्सेस एंड वी हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस डेफिनेटली। रिया चक्रवर्ती के साथ जितना भी वक्त आपने गुजारा सेट पर या वैसे भी जितना भी जाना, किस तरह की हैं वो, क्या समझ में आया आपको? Well, it was a completely professional relationship. There was no personal interaction at all. जो हम when we had to go for rehearsals, we met about for 2 hours at Mahesh Bhatt's office. और लंबा सीन था, we rehearsed, डायरेक्टर भी सामने मौजूद था. It was a completely professional interaction. Shooting के दौरान भी I was in my own makeup room, and we never had a chance to seriously sit and interact with one another. Therefore, I can only say that हमारा जो भी वार्तालाप हुआ है रिया के साथ has been completely professional. I haven't known her personally at all. महेश भट्ट साहब के साथ चूंकि रिया चक्रवर्ती का एक व्हाट्सएप चैट भी लंबा सामने आया जो आज तक ने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि बाद में रिया से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब आप परेशान होती हैं तो जो भी, जैसे आप गॉडफादर मानते हैं, आप उनसे बातचीत करती हैं और पिता और बेटी जैसा हमारा संबंध था, इस तरह से उन्होंने सफाई दी थी। तो महेश भट्ट साहब और रिया चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ मेरा सवाल, किस तरह से सेट पर आपने उन्हें देखा? क्या अपनी पर्सनल चीजों को लेकर बहुत सारी चीजें डिस्कस किया करती थी रिया महेश साहब से? देखिए, जो भट्ट साहब एक ऐसे डायरेक्टर है जो whenever he works with his artist, वो सारे आर्टिस्ट को अपना बना लेते हैं. If you see my Twitter photograph also with Bhatt साहब, he doesn't just stand with his actor who he works. He will put his arm around him and he'll hold him and he will love him. तो वो उसका एक तरीका है अपने आर्टिस्टों के साथ बिहेव करने का. So I don't see any problem with that area. Definitely, जो भी सामने आया गया है, where all these chats are concerned, where all the data is collected by the investigative media, they're all questionable, definitely. So even I would like to know the truth behind all this, because अभी चीजें और भी गंभीर होती जा रही है with all the data and all which is coming out. So
me, like every other citizen of India, wants to know the truth. We have to get to the bottom of the truth because we want justice for Sushant. You know, he's not just an artist; he is a human being. He's a citizen of India, and most of all, he was loved by each and every one of us. So please. बिल्कुल सही कहा महेश जी आपने, और पूरा देश यही जानना चाहता है कि आखिर इस रहस्यमय मौत के पीछे का सच क्या है और रिया चक्रवर्ती की इसमें भूमिका, जो परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं, उसमें कितना दम है। यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की टीम इस वक्त भी डीआरडीओ दफ्तर में मुंबई में लगातार पूछताछ कर रही है। परिवार के उनके छोटे भाई शौविक भी हैं और बाकी सदस्य जो सुशांत के साथ रहते थे। अब मैं सीधे महिमा आपके पास आते हुए, जो ऑडियो क्लिप हमने चलाया है आपने भी बहुत गौर से सुना, इसको क्या समझ में आया? सुशांत ने मुंबई छोड़कर कहीं और बसने की बात कही थी। मुंबई ये वो जगह जिसने सुशांत को एक बड़ी पहचान दी, एक कम समय में उनको जमीन से आसमान का बड़ा सितारा बना दिया। उस मुंबई को छोड़कर वो क्यों जाना चाहते थे? देखिए, जैसे उन्होंने कहा, मैं भी यही कहूंगी कि आई सपोर्ट जस्टिस फॉर सुशांत। और इंजीनियरिंग को छोड़कर दिल्ली से बॉम्बे जाने का डिसीजन लेना, फिर टेलीविजन में अपना नाम बना के टेलीविजन से फिल्म इंडस्ट्री में जाना, उन्होंने ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं जो कि अक्सर एक इंसान अगर सोचे तो सोच के लगता है यार पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उन्होंने वो डिसीजंस लिए और उसमें सक्सेस दिखाई दी। और उनके लास्ट 6 मंथ्स के जो प्रोजेक्ट्स थे अगर हम देखें तो उसमें मुकेश छाबड़ा की फिल्म थी जो आ रही थी, उसके अलावा रूमी जाफरी के साथ उनकी बात चल रही थी फिल्म की, और 2 और बड़े प्रोड्यूसर्स जिन्होंने उन्हें लास्ट में कॉल करके फिल्म ऑफर दी थी। तो मैं ये नहीं मानूंगी कि उनके पास कोई काम की कमी थी या फिर कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस का एंगल था जहां उन्हें डर लग रहा हो कि फाइनेंशियली वो स्टेबल रहेंगे कि नहीं। जो ये ऑडियो क्लिप प्ले की गई है ये जनवरी 2020 की है, और अक्सर ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि जब एक नए साल की शुरुआत होती है तो एक इंसान अपने पूरे साल की प्लानिंग करता है। उसमें वो फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकता है, अगर उसका कहीं शिफ्ट होने का प्लान है वो एक थॉट प्रोसेस किसी के साथ शेयर कर सकता है, वो कोई फैमिली प्लानिंग भी कर सकता है, वो किसी भी तरह की प्लानिंग कर सकता है। आपकी बात महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि ये मामला इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि इस पर सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब आगे भी अपने तमाम मेहमानों से लूंगी। मैं तुरंत आती हूँ आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर का हम सीधे रुख करेंगे मुंबई से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एक तरफ रिया चक्रवर्ती शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ पिठानी से भी सीबीआई ने सवाल पूछे, जिसके जवाब में सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त, जिसकी ओर से कहा गया है प्रियंका और रिया के बीच झगड़ा हुआ था, प्रियंका और रिया चक्रवर्ती के बीच झगड़ा हुआ था। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी, पवना डैम फार्म हाउस पिकनिक के दौरान ये झगड़ा हुआ था, जो जानकारी दी गई है सिद्धार्थ पिठानी की ओर से। उस वक्त सुशांत ने रिया चक्रवर्ती का पक्ष लिया था। यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी बताता है कि इससे प्रियंका और उसके पति नाराज भी हो गए थे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का पक्ष यहाँ पर लिया गया था सुशांत सिंह राजपूत की ओर से। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साहिल, क्या जानकारी दी गई है सिद्धार्थ पिठानी की ओर से? प्रियंका का क्यों झगड़ा हुआ था रिया चक्रवर्ती के साथ, और कहा जा रहा है कि बकायदा यहाँ पर सुशांत ने रिया का पक्ष लिया था, अपनी बहन का पक्ष नहीं लिया, इसी वजह से वो नाराज हो गई और साथ में उनके पति भी। जी बिल्कुल चित्रा, और सिद्धार्थ पिठानी का ये तीसरा स्टेटमेंट होगा। तीसरी बार एजेंसीज ने उससे पूछताछ की है। पहले मुंबई पुलिस, फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और अब सीबीआई ने भी उससे पूछताछ की, और अब भी सिद्धार्थ पिठानी के साथ में रिया चक्रवर्ती और इनकी पूछताछ चल रही है। लेकिन जो बयान उसने अब तक दिया हुआ है वो काफ़ी अहमियत भरा है, क्योंकि उसने ना सिर्फ पिछले 1 साल की कहानी बताई है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी भी करीब करीब उसी वक्त सुशांत सिंह राजपूत के ज़िंदगी में आए हैं जिस वक्त से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के ज़िंदगी में है। तो पूरा ब्यौरा है। उसके साथ साथ उसने सिद्धार्थ ने जो चंडीगढ़ गए थे सुशांत सिंह राजपूत जून महीने में अपने बड़ी बहन के घर रहने के लिए, और उसके साथ उनके जीजा ओपी सिंह जो हरियाणा पुलिस में है उनके घर रहने के लिए गए थे, उसका भी ब्यौरा दिया हुआ है कि 1 महीने के लिए वो वहां पर दरअसल रहने के लिए गए थे, लेकिन 2 दिन में ही वो वहां से वापस लौट के आए। वहां भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, और उनको जो साइकियाट्रिस्ट है केरसी चावड़ा, जिनका मेडिकल रिपोर्ट हमने कल चलाया था, उन्होंने जो दवाइयां प्रिस्क्राइब की थी वही सुशांत सिंह राजपूत वहां भी ले रहे थे। ये भी बात उन्होंने अपने बयान में कही। और उसके बाद सबसे अहम कड़ी आती है 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक क्या हुआ, उसका भी ब्यौरा सिद्धार्थ पिठानी ने अपने पूरे इस बयान में रखा है। और खास करके 14 तारीख को
जो पूरा घटनाक्रम है वो भी उन्होंने सामने रखने की कोशिश की है। हालांकि एक बात बहुत अहम है, सिद्धार्थ पिठानी ने कहा है कि 8 तारीख को रिया जाने के बाद अगले दिन सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत ने कहा कि उसके मोबाइल पे उनके हार्ड डिस्क पे जो उनके पुराने वीडियोस हैं, जो अब तक उन्होंने शूट किए हुए वीडियोस हैं अलग अलग जगह के, वो सारे डिलीट करे डेटा, और वो डेटा उनके मुताबिक सुशांत के कहने पर उन्होंने डिलीट किया था। ये बात भी उन्होंने कही है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, 13 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर उनके मोबाइल से उन्होंने बिल पेमेंट्स भी किए थे। सुशांत सिंह राजपूत के 13 तारीख को उन्होंने अपने सारे बिल्स का भुगतान किया था, ये भी बात उन्होंने कही है। लेकिन बाकी अगर अहम जानकारी देखें तो जो आपने अभी जिक्र किया जिस बात का कि रिया चक्रवर्ती उनके लाइफ में आने के बाद जब वो पवना डैम पर जो उनका फार्म हाउस है वहां पर जो भाड़े से उन्होंने लिया था वहां पर वो गए थे, तब प्रियंका और रिया के बीच कुछ झगड़ा हुआ। किस वजह से झगड़ा हुआ वो सिद्धार्थ ने नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती की तरफ से अपनी बात रखी और जिसके वजह से प्रियंका और उनके पति नाराज हुए और वो तब तक सुशांत के साथ रह रहे थे मुंबई में और उनका घर छोड़कर वो वापस चले गए। उसके साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत कई बार कैसे ऊपर नीचे होती थी उसके बारे में भी सिद्धार्थ पिठानी ने अपनी बात रखी है। और उसके बाद 14 तारीख को खास करके 10:30 बजे पहली बार उनको पता चला कि सुशांत अपने घर का दरवाजा नहीं खोल रहे, अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रहे। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है वो घटनाक्रम भी उन्होंने पूरी तरीके से रखा है कि किस तरीके से उनकी बहन नीतू को फोन किया गया। उसके बाद चंडीगढ़ की बहन नीतू और उनका फोन आया, उनके कहने पर उन्होंने सुशांत का जो पार्थिव है जो पंखे से लटका हुआ था उसे नीचे उतारा और उसके बाद का पूरा घटनाक्रम वहां पर लिखा गया। तो सिद्धार्थ पिठानी का बयान काफी अहमियत रखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। लेकिन एक बार फिर से मैं आऊंगी, किस वीडियो क्लिप को डिलीट किया गया था, जरा इसके बारे में बताइए। सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह राजपूत का वो कौन सा वीडियो क्लिप या फिर फोटोग्राफ्स थे जो सुशांत के कहने के बाद डिलीट किए गए? जी देखिए, जो उनके स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कहा है कि सुशांत ने मुझे कहा कि उनके हार्ड डिस्क से डेटा और वीडियोस और कुछ गाने जो उन्होंने रिकॉर्ड किए थे वो उनके हार्ड डिस्क से डिलीट करे, ये उन्होंने कहा है। और उनके कहने पर उनकी मौजूदगी में वो गाने और जो बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग थी, उनका ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को इस तरीके से वीडियो शूट करने की काफ़ी आदत थी, भले वो उनके फार्म हाउस पे हो, जब वो जाते थे या कहीं बाहर घूमने जाते थे, उसमें से कई वीडियोस हम लोग टीवी पर भी देख चुके हैं जो उनके परिवार के तरफ से सामने रखे गए थे। उसी तरीके के कई वीडियोस उन्होंने शूट किए हुए थे, वो डिलीट करने के लिए उन्होंने कहा था। और ये कहा गया था 10 तारीख को उनको दरअसल कहा गया था, 9 या 10 तारीख को ये कहा गया था। उसके साथ साथ उन्होंने दिशा सालियन की मौत के बाद किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर के रूप में उनको पेश किया गया, उसको लेकर सुशांत कैसे नाराज थे और बौखला गए थे उसकी वजह से। एक और बात सामने आ रही है, क्या इस बात का भी जिक्र है कि सुशांत सिंह राजपूत के कार्ड से रिया चक्रवर्ती ने खूब शॉपिंग की थी? सैमुअल ने इस बात की जानकारी दी, इस तरह की भी कोई बातचीत, कोई जानकारी दी गई है सिद्धार्थ पिठानी की ओर से? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके की भी जानकारी है। उनका ये कहना है कि वो बीच में अपने गांव हैदराबाद चले गए थे क्योंकि उनके पिता की बिजनेस को लेकर कुछ दिक्कतें थी, तो वो सुशांत के पास से अपना जॉब छोड़कर अपने गांव चले गए, हैदराबाद वापस चले गए थे। जब वो लौटे, क्योंकि सुशांत ने उन्हें फोन करके बुलाया, जब वो लौटे वापस, उसके बाद रिया तब उस वक्त नहीं थी घर में और उनको पूछा गया कि क्या हुआ, रिया कहाँ गई, तो सुशांत रोने लगे। उसके बाद उनका ये कहना है कि उन्होंने पूछा सैमुअल मिरांडा को पूछा तो सैमुअल मिरांडा ने बोला कि रिया बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है सुशांत सिंह राजपूत का कार्ड इस्तेमाल करके, ये बात उन्होंने उनको कही थी। उसके साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी जो उनकी असलियत में मैनेजर थी और उनके पाँव में चोट आने की वजह से कुछ समय के लिए दिशा सालियन ने उनका एक चीज जिसकी चैट सोशल मीडिया पर आए थे, उस समय के लिए उन्होंने दिशा ने उनका काम थोड़ी देर के लिए देखा था, लेकिन उनकी मैनेजर श्रुति मोदी थी, ये सुबह 10 से 6 बजे तक वहां पर आते थे। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ दिन के बाद जनवरी महीने में ही रिया चक्रवर्ती वापस सुशांत के पास रहने आई
और उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने उन्हें कहा कि दीपेश और हम सबको मिलकर अब सुशांत का ख्याल रखना है। ये बात भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में लिखी है, स्टेटमेंट में बताई है। तो कुल मिलाकर ये सारी जानकारी सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से दी गई। और सिद्धार्थ पिठानी का बयान इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि पूरे लॉकडाउन में भी उसके साथ साथ 8 तारीख से 14 तारीख तक भी वो उनके साथ मौजूद थे वहां पर। उसमें यह भी उन्होंने कहा है कि मीतू जो उनकी बहन है जो मुंबई में रहती है, वो 8 तारीख को उनके साथ रहने आई। 12 तारीख को मीतू वापस जाती है और जाते हुए उनको कहकर जाती है कि सुशांत का ख्याल रखिए। उसके साथ साथ ये भी जिक्र है कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी दवाइयां लेना बंद कर दिया था और सुशांत को उन्होंने बार बार कहा कि कैसे उनको दवाइयां बंद नहीं करनी चाहिए। इस बात का जिक्र भी उनके इस बयान में किया गया है। तो इस तरीके की तमाम जानकारी सिद्धार्थ पिठानी ने एजेंसीज को दी है। जाहिर सी बात है कि कोई भी एजेंसी कोई भी इन्वेस्टिगेशन में हर बयान को दूसरे बयान के साथ कोलैबोरेट करती है, क्योंकि एक दूसरे की कहानी हर बयान में होती है। वो सारे जो पक्ष है वो एक दूसरे से मिलने चाहिए, इसके लिए कोलैबोरेशन करना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी के हर स्टेटमेंट को कोलैबोरेट करके भी देखा जा रहा है। तो ये बात काफी अहम है चित्रा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और जो बातें साहिल ने बताई है, देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। सुशांत की बहन प्रियंका और रिया के बीच झगड़ा हुआ था। सिद्धार्थ पिठानी ने आज जो बयान दिया है, एक एक करके मैं चाहूंगी फुल फ्रेम इसको दिखाया जाए। पवना डैम फार्म हाउस पिकनिक के दौरान दोनों के बीच में यानी कि सुशांत की बहन और रिया चक्रवर्ती के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के समय सुशांत ने रिया का पक्ष लिया था, जिसकी वजह से सुशांत की बहन और जीजा दोनों नाराज हो गए थे। प्रियंका और उसके पति ने सुशांत का घर छोड़ दिया, नाराजगी जताई कि तुम रिया का पक्ष क्यों ले रहे हो। 2 से 3 दिन बाद ही प्रियंका और उसके पति सुशांत के घर से चले गए। ये जानकारी भी सिद्धार्थ पिठानी की ओर से दी गई है। सिद्धार्थ पिठानी बेहद महत्वपूर्ण शख्स जो आखिरी वक्त तक लगातार बना रहा था। और इसमें आखिरी प्लेट आपने देखी कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के कार्ड का इस्तेमाल शॉपिंग के लिए खूब किया करती थी। सैमुअल ने इस बात की जानकारी दी सिद्धार्थ पिठानी को। यह भी खबर निकलकर सामने आई है। अब मैं साहिल दोबारा से आपका रुख करते हुए, चूंकि आज तक को जो इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती ने दिया उसमें वो कहती हैं कि 34,000 मेरे मेकअप पर खर्च कर दिए थे सुशांत ने, जिसको मैंने वापस कर दिया और यही एकमात्र ट्रांजैक्शन मेरे और उनके अकाउंट के बीच में है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बताती हैं। लेकिन अगर सिद्धार्थ पिठानी के इस बयान को हम देखें तो वो तो सुशांत का कार्ड लेकर धड़ल्ले से शॉपिंग किया करती थी, जिस तरह की बातें इसमें निकलकर सामने आई हैं। जी बिल्कुल, इसके बयान के मुताबिक इस तरीके से शॉपिंग रिया करती थी और ये बात उसको सैमुअल मिरांडा ने कही। हालांकि पूरे बयान में उन्होंने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि उन्होंने खुद इस तरीके से करते हुए देखा है आगे एक जगह पे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जनवरी महीने में सैमुअल मिरांडा ने खास करके जब 4 महीने सिद्धार्थ पिठानी 2-3 महीने सिद्धार्थ पिठानी उनके साथ नहीं थे, अपने गांव वापस गए थे, हैदराबाद वापस गए थे और उसके बाद उन्होंने नौकरी पकड़ ली थी वहां पर। उस वक्त क्या हुआ इसका जायजा जब उन्होंने सैमुअल मिरांडा से लिया, तब सैमुअल मिरांडा ने उनको ये बात कही कि रिया शॉपिंग किया करती थी अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत के कार्ड पर। इस तरीके की बात सैमुअल मिरांडा ने उनको कही। ये बात सिद्धार्थ पिठानी ने सामने रखी। हालांकि उनके बयान में कहीं ये जिक्र नहीं है कि उन्होंने खुद कभी इस तरीके से देखा है, लेकिन हाँ, सैमुअल मिरांडा ने उनको जो बात कही, ये बात इनके बयान में साफ लिखी गई है। उसके साथ साथ एक जिक्र ये भी है, क्योंकि ये बात भी सामने आई थी कि सिद्धार्थ पिठानी के पास भी उनके कार्ड का नंबर था या उनके बैंक जो उनका पासवर्ड या नंबर था, तो उस पर उनका ये कहना है कि मोबाइल के जरिए 13 तारीख को यानी 13 जून को सुशांत ने कुछ बिल्स का पेमेंट किया था जो पेंडिंग था। उस बिल के पेमेंट के लिए सुशांत के मोबाइल से ये पेमेंट किया गया और सिद्धार्थ के मदद से दरअसल ये पेमेंट किया गया था, ऐसा सिद्धार्थ ने एजेंसीज को बताया हुआ है। ये कौन से बिल्स थे कि जिसका पेमेंट उसने किया, इसका जिक्र नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जब 8 तारीख को रिया चली गई, उसका जिक्र जरूर इसमें किया गया है कम से कम 13 तारीख तक अगर बिल का पेमेंट करते हैं सुशांत सिंह राजपूत, यानी कि वो बिल्कुल सामान्य थे, रोजमर्रा की जिंदगी आगे बढ़ रही थी। 12 तारीख को उनकी बहन वापस अपने घर लौट जाती हैं, 13 तारीख को वो बिल का पेमेंट करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है 14 तारीख को? रहस्यमय मौत के पीछे की बड़ी वजह क्या है, इसी को सुलझाने में लगातार सीबीआई की टीम लगी हुई है। रिया चक्रवर्ती, शौविक से साथ ही बाकी लोगों से भी पूछताछ लगातार जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। सुशांत की आवाज के जरिए रिया का क्या राज है, उसको सुलझाने की, खोलने की हम कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे,
सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी की ओर से सीबीआई को जानकारी दी गई है। रिया चक्रवर्ती और प्रियंका, जो सुशांत की बहन, दोनों में झगड़ा हुआ था एक ट्रिप के दौरान, जिसके बाद रिया का पक्ष लेने पर बहन नाराज हो गई थी और चली गई थी। और भी बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं धीरे धीरे। आज तक लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।